कि sir, you are making a nuclear missile. Similarly, Pakistan must be making, China must be also making. Who is making the protection against these missiles of enemy in India? Gentlemen, you will be surprised to know nobody in our country was working on protection technology against nuclear attack by our adversaries that time. So I was 29, 30 years old, a young captain in army that time. So I decided that I will work on this development of this technology, and therefore I started work that time in 1985-88 in Pune in development of this nuclear missile technology. And today he is famous as Missile Man of India, but there is his Chela, who is known Bunker Man of India, but he is not known because the technology of nuclear protection is still highly classified. It is still top secret in our country. But after second wave of Corona, I decided that part of this technology, which I will discuss with you today, it is a technology of indoor air quality management. So that will be used for common public now. And he was a visionary, Dr. APJ Abdul Kalam. In fact, on his last day, on 27 July 2015, when he was giving a lecture to the AIIM Shillong students, this was his topic of discussion, a livable planet Earth. This particular threat of global warming, climate change was well known to him, and he was about to talk on this topic that day, but unfortunately he suffered a heart attack, and therefore I, as his scientific discipline, has taken a pledge that the incomplete dream of our Missile Man of India will now be fulfilled by his scientific disciple, that is Bunker Man of India. So that is our mission. So I will explain to you what is the concept of this technology. So I have given you a small pamphlet also. If you see the first graph in that pamphlet, this is the graph of CO2 starting from year 1000 to 2016, gentlemen. Now, if you notice left part of this, the CO2 content in Indian environment used to be 280 to 300 parts per million, and it used to exist for thousands and thousands of years on this earth. But what happened after this line? Industrial era started. 1776 was the first steam engine made in the world, and after that industrialization started, and the CO2 content in the environment kept on increasing. And today, the CO2 content in environment, which used to be 280, 300 parts per million, gentlemen, world average has already crossed 425 parts per million. And it is not stopping, it is still rising further. The problem is more in India. In India, gentlemen, this is the record I have taken in my house in the east of Kailash. Whereas world average is 425 ppm of CO2, in Delhi it is going beyond 500, 600, 700 and even 900 parts per million in some of the areas. So India is experiencing more global warming than the rest of the world. It is a fact. Now these are the readings. This is 900 something. This was taken near NDMA building, where our National Disaster Management Authority building is there. Outside that, this is the reading at another place near New Delhi Secretariat. It was in fact found around 986 in front of Delhi Secretariat. And gentlemen, upper limit of this in all air conditioned building is specified as 1000 parts per million only. So now you can imagine if 1000 parts per million is outside in the outside environment, all your air conditioning plants are failing today because of this reason. Because they are not able to maintain indoor air quality. I will explain you further. If they try to maintain indoor air quality, the temperature is not being maintained. Temperature is rising beyond 29, 30 degrees centigrade in those buildings. In room like this, please don't mind, everywhere this is happening. But here, you see, I am giving a lecture to you on this topic, but you are sitting in an environment which is neither comfortable to you physically, because the two split air conditioners are not able to maintain temperature even. Forget about indoor air quality. You will be surprised if I tell you what is the
CO2 content in this air? कितना है बेटा, पढ़ के बताना। 1336. You are sitting here in 1336 now, and if you sit here for 1 more hour, it will increase even beyond 2000. See the graph of Delhi. This 805, which was supposed to be in the year 2090, it has already crossed in Delhi. So we are living in Delhi in the age of 2090. And imagine, we are saying, we are shouting that we will become net zero by 2070, then say 2030, then we say नहीं, आज़ादी का अमृतसर महोत्सव है, by 2047 we will become net zero. Gentlemen, bitter truth is you are observing it. India cannot become net zero even by 2090 if you don't arrest this rising trend of CO2 in atmosphere. I will tell you further. And what will happen in 2200? It will cross a very dangerous level, 5000 ppm. अगर 5000 ppm हो गया बाहर हवा में, you can see what will happen. The safe limit of this CO2 is here, acceptable level. 700-800 ppm is the acceptable level. And you all are sitting here at 1300 ppm. And I will also tell you what happens in 1300-1400 ppm. Your cognitive skill, cognitive capacity is reduced by 50%, 50% beyond 1400 ppm CO2. It means all of us, the brightest brain of police headquarters, brightest brain of Indian police are sitting here, but you are not able to utilize your full mental capacity in any case. And this is happening in all schools. Our children are studying in the same atmosphere. बंद कमरे हैं, वेंटिलेशन बंद है, 1-2 स्प्लिट एसी लगे हुए हैं क्लासरूम में, और यही हालत है। तो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से ब्रेनी बनेंगे, कहाँ से रिसर्च करेंगे, जब उनको पढ़ने लायक माहौल ही नहीं दिया जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन एट 5000? इट मे लीड टू सीरियस ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, may result into permanent brain damage, coma or even death. Now you can imagine by 2090 या beyond that, अगर ये 5000 ppm हो गया, होगा, अगर कुछ नहीं किया रोकने के लिए तो होगा, तो क्या होगा? No life will be left on earth. And that's why Dr. APJ Abdul Kalam was worried that make this world livable, planet livable. Otherwise planet will not remain livable. And gentlemen, if you are thinking that I am exaggerating this fact, you are already seeing the effect of it in the world. पहले तितलियां होती थी बहुत, जुगनू होते थे, पटबीज ने जो चमकते थे रात में दिन में, कहाँ चले गए? गोरैया होती थी, कहाँ चली गई? बिकॉज दे आर द वीकेस्ट. तो जो कमजोर थे वो तो ऑलरेडी जा चुके, हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा नंबर थोड़ा बाद में आएगा, बट डेफिनेटली बाई 2100-2200 आने वाला है वो समय जहाँ इंसान दिखाई नहीं देंगे जमीन पर, कोई भी पशु पक्षी दिखाई नहीं देगा, मरने लगे हैं अभी. एंड रीजन इज दिस ग्लोबल वार्मिंग. मैं आपको दिखाऊंगा आज और स्लाइड्स के मुताबिक कितनी सीरियस सिचुएशन है. सो बिफोर वी रीच दैट सिचुएशन वी हैव टू डू समथिंग. नाउ दिस इज IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जेंटलमैन, वी हैव स्पेसिफाइड which gives the breathing air quality. It says in breathing air CO2 content, carbon dioxide content should not exceed 500 parts per million. This is the breathable quality. And we are sitting here at 1300, 1500, 2000 parts per million, जो 3-4 गुना है 500 से. तो are we living in a safe environment? No. And gentlemen, agony is कि ये सिर्फ आपके इस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं है. The same thing is happening in hospitals. Same thing happening in 5-star hotels. I will show you the picture of 5-star hotels also. You get authorized breathing air quality of this standard only when you are on ventilator in a hospital. जब आप ICU में एडमिट होते हो, जब डॉक्टर आपको चेक करके ऑक्सीजन देता है, he ensures कि उसमें CO2 500 ppm से कम हो. तो in India, rest of the places we don't get even the authorized quality breathing air. Forget about water and food. Breathing air is most essential. You cannot remain live beyond 2-3 minutes. अगर आप आँख बंद कर लें, हवा नहीं लें, तो नहीं जिंदा रहेंगे. तो anyway, I will proceed ahead. This is the cognitive effect.
इट हैज बीन प्रूव्ड कि अगर CO2 लेवल 900 ppm से ऊपर बढ़ता है तो योर कॉग्निटिव स्किल गेट रिड्यूस्ड बाय 15%। अगर ये 1400 ppm से बढ़ता है तो योर कॉग्निटिव स्किल इज रिड्यूस्ड बाय 50%। दिस इज द स्टडी carried out in many universities in USA, in India also. Now, this is the level which I have observed in a classroom, in a university in NCR, Greater Noida, gentlemen, I don't want to name the university, but this was the CO2 level observed in this classroom, 2331. और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें लाखों रुपए हम फीस लेते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। 5-star होटल टाइप फैसिलिटी है सारी, एंड दिस इज ए ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग, गृहा सर्टिफाइड बिल्डिंग है। लेकिन क्या किया है, सिस्टम देखिए, जब बिल्डिंग बनी ग्रीन थी, वेंटिलेशन ओपन था, क्लासरूम है, 2 विंडो वेंटिलेटर लगे हुए खुले थे, सामने डोर है, दरवाजे खिड़कियां खुले होंगे तो ग्रीन होगी, वेंटिलेशन होगा। लेकिन क्या किया, स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू किया कि साहब गर्मी लगती है, ग्रेटर नोएडा में गर्मी लगेगी। उन्होंने दोनों विंडो बंद किए, उसमें स्प्लिट AC 2 लगा दी, जैसे आपके इस कमरे में लगाए हुए हैं। 2 स्प्लिट AC लगाते ही वेंटिलेशन बंद, और सेम सिचुएशन होगी जो आज आप यहाँ देख रहे हो। 1300, 1400, 1500 अभी बढ़ गया होगा, 1500 हो गया होगा। जब तक हम निकलेंगे 2000 पहुँच जाएगा, 1800 पहुँच जाएगा। तो ये कंडीशन 2331 क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया है, और ये हर जगह है ये हालत। एक यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं करीबन 10 यूनिवर्सिटी का सर्वे कर चुका हूँ, 10 की 10 जगह ये मिले हैं। A1 classroom, 5-star culture, but ventilation is totally stopped and no consideration to indoor air quality. ये एक और जगह है 5-star होटल में, आप देख रहे हैं मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे बात हो रही है, पोल्यूशन पे बात हो रही है, और 5-star होटल में दिल्ली के अंदर बैठे बैठे ये CO2 पाया गया है 1300, 1400, 1500, सेम जो आपके यहाँ इस ये और भी दिए एक अनदर आई थिंक 5-star होटल, नो दिस इज विज्ञान भवन। विज्ञान भवन यू नो, जहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब आके एड्रेस करते हैं, विज्ञान भवन के अंदर भी ये 1600 ppm रिपोर्ट किया गया है, इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, तो एक रीडिंग है। तो हर जगह ये हालत हो रही है। ये एक सिनेमा हॉल के अंदर है हिमाचल में, 3200, 3000 से ऊपर इंटरवल के दौरान, और ये वो है जहाँ हम 700-800 रुपये का टिकट खरीद करके फैमिली को पिक्चर दिखाने ले जाते हैं। तो जेंटलमैन, दिस इज द कंडीशन। Now what I want to stress upon you, you see what was happening all these years, हजारों सालों से जब ये 280-300 ppm था धरती पर, ये सस्टेनेबल साइकिल था कि जितनी CO2 हम जनरेट करते थे, पेड़ पौधे सारी CO2 को सोख लेते थे, बदले में हमको ऑक्सीजन देते थे और खाना देते थे। तो दिस वाज ए सस्टेनेबल साइकिल, सस्टेनेबल सिस्टम existing on this planet Earth for thousands and thousands of years. What we did? We went for industries. We created more pollution. Then we increased number of vehicles. Traffic बढ़ा और pollution create किया। उसके बाद मैंने AC लगाने शुरू किए। Nowadays there is no facility without AC. घर में AC है, ऑफिस में AC है, कार में AC है, ट्रेन में AC है, प्लेन में AC है। तो एयर कंडीशनिंग इतना बढ़ा कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। और एयर कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहे हैं, अंदर का पोल्यूशन बाहर फेंक रहे हैं। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल दीज मेजर्स। पिछले 30 साल से 35 साल से गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है पोल्यूशन को कम करें। डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर दी, अभी CNG भी बंद कर दी, कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ये कम नहीं हो रहा, ये रुक भी नहीं रहा। तो मैं तब मानूंगा कि कोई अचीवमेंट है इन सब चीज़ों का जब ये बढ़ता हुआ ग्राफ CO2 का रुक जाए। लेकिन ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है और खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। इसका रेट ऑफ इंक्रीज इज मच फास्टर देन इट वाज अर्लियर। दिस यू ऑल आर एक्सपीरियंसिंग। इस बार दिल्ली में गर्मी पिछले साल से ज़्यादा है, अगले साल इससे ज़्यादा होगी, और ये बढ़ती ही जा रही है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि ये सब मेजर जो गवर्नमेंट ले रही है इससे फ़र्क पड़ रहा है, बट फ़र्क पड़ता है 2%, 3%, 4%। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाती है 20 से 25%।
नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ जाते हैं 20%, नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स बढ़ जाते हैं और भी ज़्यादा। पहले घर में एक एयर कंडीशनर होता था, एक कमरे में लग्जरी माना जाता था। आज ये इट इज़ नॉट ए लग्जरी आइटम, इट इज़ नेसेसिटी। इवन हियर नाउ वी आर सिटिंग 20 पीपल हियर, दिस 2 AC स्प्लिट ACs आर नॉट सफिशिएंट जेंटलमैन। अगर डिजाइन करें लोड, यहाँ पर कम से कम 5 या 6 AC होने चाहिए इस टाइप के स्प्लिट AC, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इंडोर एयर क्वालिटी के लिए और सिस्टम होना चाहिए। अदरवाइज वी आर क्रिएटिंग ए गैस चैम्बर एंड वी आर सिटिंग इन ए gas chamber which is detrimental to our health. So what we do here, since all these systems are failing, so in bunkerman technology, gentlemen, what we do, that whatever is additional CO2, VOC, जो भी gases हैं जो हम create करते हैं, our systems absorb all these gases. So we have developed a technology, ये सारी gases को हम यहाँ absorb करते हैं, और absorb करके इसको वापस हवा में नहीं छोड़ते। जैसे बाकी एयर प्योरीफायर हैं वो डस्ट को कलेक्ट करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करते हैं, साफ करते हैं हवा को कमरे के अंदर की टेम्परेरी, लेकिन उसके बाद हम उनको बाहर जाके फिर हवा में झाड़ देते हैं, तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम नहीं हुआ। यहाँ पर हम जो भी गैसेज इस सिस्टम में एब्जॉर्ब करते हैं वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये फिल्टर चलते हैं हमारे 1 साल के बाद हम नए फिल्टर लगा देते हैं। जो पुराना फिल्टर है उनसे हम ये मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट मेरठ में मेरे गांव में बन रही है मैन्योर। इस मैन्योर को हम किसानों को इशू करते हैं, ये फिर जमीन में जाती है ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एब्जॉर्ब की है ये कार्बोनेट में बदल जाती है, एंड कार्बोनेट्स आर गुड न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स। ये खाद है ऑर्गेनिक मैन्योर। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स आर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, इट इज ए फर्टिलाइजर। So the pollution from the air is converted into fertilizer and giving back to the mother earth. यहाँ से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी पेड़ पौधों की, फसलों की कैपेसिटी बढ़ेगी, और बदले में उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन, एग्री प्रोडक्शन मिलेगा। So this will again become a sustainable cycle. So this is the basic concept of bunkerman technology, that first you absorb all these pollutions from indoor air, अच्छी हेल्दी हवा दीजिए अपने ऑक्यूपेंट्स को जिससे हेल्थ सुधरेगी। इस पोल्यूशन को हवा में मत भेजिए वातावरण में, कंटिन्यूसली वातावरण साफ होगा, और इसको यूटिलाइज कीजिए। हमने इन फिल्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब हवा इससे पास होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड को, जितनी भी टॉक्सिक गैसेज हैं उन सबको हमारे सिस्टम सोख लेते हैं। इट इज़ डिजाइंड दैट वे, and then it is converted into a useful product like organic manure, और ये सस्टेनेबल साइकिल दोबारा से वापस आ जाएगा अर्थ पे। ये उम्मीद है इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को मास स्केल पे अडोप्ट करना पड़ेगा। मेरा घर में आप आके देख सकते हैं, वहाँ पर सिस्टम ये लगे हुए हैं। वो घर आज की तारीख में दिल्ली के पोल्यूटेड वातावरण से 3000 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। 3000 पेड़ों के बराबर। जेंटलमैन, पेड़ों के बराबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक आदमी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम एक सांस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं एक सांस में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वी नीड 17 ट्रीज पर पर्सन। बाकी डाटा बता देता हूँ। एक दिन में 24 घंटे में एक आदमी करीब 1.25 kg कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक साल में 450 kg अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जो एक बड़ा पेड़ है 10 से 12 साल की उम्र वाला, वो सिर्फ 25 kg, 20 से 25 kg कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हवा से। तो हमें सिर्फ सांस लेने के लिए जो हम वातावरण को पोल्यूट कर रहे हैं, उसके लिए वी नीड 17 ट्रीज पर पर्सन। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये सिस्टम है जेंटलमैन। जो हम हवा ले रहे हैं सांस लेने में अंदर, उसमें CO2 है 300, 400, 500 ppm। लेकिन यू विल बी सरप्राइज के जो यहाँ से सांस लेके हम छोड़ते हैं हवा को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है 4.38%, यानी कि 43,800 ppm। कितने गुना बढ़ा दिया हमने एक सांस में? 126 गुना। कैलकुलेशन यहाँ बड़ी सिंपल है, और ये 24 घंटे काम करते हैं हम लोग। सांस तो लेना जरूरी है, तो 24 घंटे हर सांस में, हर 3 सेकंड में वी आर मल्टीप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन इंडोर एनवायरनमेंट बाई ए फैक्टर ऑफ 146। और ये हम ही नहीं कर रहे हैं, बाकी जानवर हैं। छिपकली भी यहाँ पर कोई घूम रही है, कोई चूहा भी छुपा हुआ है,
वो भी यही काम कर रहा है, सांस लेके जिंदा है, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जो हम कह रहे हैं कि पोल्यूशन क्रिएटिंग मशीन सिर्फ इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पोल्यूशन क्रिएटिंग मशीन दिल्ली के अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आगे आएगा ये। मेरी स्टडी ये है, दुनिया में और हिंदुस्तान में भी जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम सिर्फ इस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रीज, कारें, वो सब फॉसिल फ्यूल मेरे कैलकुलेशन से वो सिर्फ 72% है टोटल पॉपुलेशन का। इसके अलावा अब सरकार क्या कर रही है, सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है ना, डीजल की गाड़ी बंद करके पेट्रोल की गाड़ी बंद करके। ये अगर मान लिया 100% अचीव भी कर लिया सरकार ने, उसके अलावा ये पोल्यूशन फिर भी रहता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसमें 13% है बाई रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ सांस लेने से, और ये 15% है जो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सांस लेते हैं। तो दिस 28% पोल्यूशन इज एक्स्ट्रा, 72 को कर दिया तो ये एक्स्ट्रा है। और ये जो 28% है, इसका कितना है परसेंटेज, इसका करीब 40% है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, जो गवर्नमेंट अभी पॉलिसी अपना रही है कि पानी छिड़क दो, डस्ट रिमूव कर दो, ग्रैप 3 ग्रैप 4 लगा दो, कुछ नहीं होने वाला इससे। दीज आर ऑल आई वाश, मैं बता चुका हूँ, राइटिंग में दे चुका हूँ गवर्नमेंट को, समझ आ रहा है अभी उनको। तो हम इसको सबसे पहले टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ को कौन अफेक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ को ये अफेक्ट कर रहा है जो 1516, कितने रीडिंग आ गई बेटा बताना, 600 हो गई है और बढ़ती जाएगी, 1600 हो गई है, ये 1800 होगी, 2000 होगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो सब यही है पोल्यूशन। हम CO2 भी छोड़ रहे हैं, उसके अलावा VOC बहुत सारी हैं, और ये बाहर नहीं जा रही। बाहर कब जाएंगी, जब हम दरवाजा खोलेंगे, फ्रेश हवा लेंगे तो फिर बाहर ही जाएगी ये। बाहर का एनवायरनमेंट तो गंदा कर ही रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ बैठ करके। और यही होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, सभी ऑफिस में या कॉन्फ्रेंस में भी यही होता है। जब आप आते हैं पहले 10 मिनट में आप अटेंटिव होते हो, उसके बाद लेक्चर बोरिंग लगने लगेगा आपको मेरा। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा लेक्चर बोरिंग है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी समझने की कम होती जाएगी, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम हो रही है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट 40% कॉग्निटिव स्किल। अगर 1600 है, 1400 के ऊपर 50% हो जाती है कॉग्निटिव स्किल। वी ऑल आर नाउ वर्किंग एट 40% ऑफ अवर कॉग्निटिव कैपेसिटी। दिस इज द बिटर ट्रूथ। बुरा मानने की बात नहीं है, सच्चा है, फैक्ट है। और इसलिए नींद आने लगती है, जम भाई लेने लगते हैं थोड़ी देर बाद, शरीर शिथिल होने लगता है। क्लासरूम में लोग सोते हैं, इसीलिए सोते हैं, बिकॉज ऑफ दिस CO2 कंटेंट। क्योंकि बॉडी मांगती है आपकी ऑक्सीजन, और उतनी ऑक्सीजन कम मिल रही है जितनी CO2 ज़्यादा है। तो ये रीजन है इसका। तो देखिए जो मैंने बताया, अगर सिर्फ पेड़ों से हम कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम एक इसके नाम, आज मैं फैक्ट बताता हूँ कि पेड़ लगाने से क्या होगा, नेचुरल पेड़ लगाने से कितने लगाओगे। तो यू नीड 17 ट्रीज पर पर्सन हियर, जो आप सांस लेके छोड़ रहे हो। यू नीड अबाउट 20 ट्रीज पर पर्सन फॉर दिस, जो पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं। और जो हम ये जनरेट करने के लिए कंज्यूम इंडस्ट्री का कौन करता है, हम ही कर रहे हैं ना। इंडस्ट्री ने फ्रिज बनाया, फ्रिज तो हमारे घर में यूज होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये भी हमारी है। तो फॉर दिस वी नीड 94 ट्रीज पर पर्सन। सो टुडे इंडिया नीड्स 131 ट्रीज पर पर्सन, अगर हम पोल्यूशन को सिर्फ पेड़ लगाने से रोकेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है, बिटर ट्रूथ क्या है, कितने पेड़ हैं इंडिया में पर पर्सन? ओनली 28 ट्रीज पर पर्सन, whereas we need 131। तो क्या ये कह के एक पेड़ माँ के नाम एक 28 के 131 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और मालूम है दिल्ली में कितने पेड़ हैं पर पर्सन? दिल्ली में हर 3 आदमियों के पास सिर्फ एक पेड़ है, यानी कि 0.3 ट्री पर पर्सन। तो क्या हमें चाहिए कितने? 131। तो बताइए आप कब अचीव होगा ये टारगेट? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो एक ही तरीका है इसका कि वी हैव आर्टिफिशियल ट्रीज। और ये आर्टिफिशियल ट्रीज, ये बंकरमैन टेक्नोलॉजी वोट देती है आपको आर्टिफिशियल ट्रीज। मैं बताऊंगा क्या आर्टिफिशियल ट्रीज होती है। क्योंकि हर एक आदमी 17 पेड़ चाहिए। अगर हम यहाँ 20 आदमी बैठे हैं तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो 17 × 20 340 पेड़ों के बराबर काम करे। और वो लग सकता है आज की तारीख में, हमारे पास है सिस्टम जो 340 पेड़ों के बराबर इस रूम में लगाया जा सकता है। हवा को साफ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को रिमूव करेगा, बाहर नहीं फेंकेगा वातावरण में, उसकी ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगा, खाद बनाएगा, सस्टेनेबल साइकिल में डालेगा। वी विल टॉक ऑफ दैट टुडे। ये है दिल्ली की हालत, less than 1 tree per person। एंड लुक एट द वर्ल्ड एवरेज।
जेंटलमैन, हमारे पास इंडिया में 28 पेड़ एंड वी शुड बी थैंकफुल टू दीज कंट्रीज। पता है इनके पास कितने पेड़ हैं? हजारों पेड़ पर पर्सन। छोटी सी कंट्री है सरेनेम, साउथ अमेरिका में 15,000 पेड़ हैं उनके पास पर पर्सन। कनाडा के पास भी 8-9 हज़ार हैं, यूएसए के पास भी 700 हैं। ये पहले 2 कॉलम वाले पेड़ों इन कंट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट बचा हुआ है, ना कि हमारे 28 पेड़ की वजह से। और हमारे पास तो 28 हैं। लुक एट अवर नेबर्स। पाकिस्तान के पास कितने? 5। श्रीलंका के पास अच्छे हैं फिर भी। इजराइल 2, इजिप्ट 1, सिंगापुर 0। दिल्ली जैसी हालत है सिंगापुर की, 0.1 0.2 ट्रीज पर पर्सन, मीन्स ऑलमोस्ट 0। सऊदी अरबिया 0, पॉपुलेशन बहुत है, पेड़ है ही नहीं। कतार 0, यूएई 0। श्रीलंका इज गुड, मोर देन 100 हैं श्रीलंका में, फिर भी बहुत अच्छा है। चाइना अच्छा है। चाइना इज हैविंग मोर देन 100 ट्रीज आई थिंक। हाँ, 102। चाइना इज हैविंग मोर देन 100 ट्रीज, जबकि पॉपुलेशन बहुत है, तो उनके पास एरिया बहुत है, वहाँ पर जंगल्स हैं, ग्रीनरी बहुत है चाइना में हमारे मुताबिक। बट इवन 100 आर इनसफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने 28 के डबल भी कर लिए, ट्रिपल भी कर लिए, तो एनवायरनमेंट तो हमारा इन सबके साथ कॉमन है, तो इनकी वजह से भी नहीं संभलने वाले। तो नेचुरल पेड़ लगाने से तो काम नहीं चलने वाला, इतना सैचुरेशन आ गया। मैं कहता हूँ लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाने चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज जेंटलमैन, आई वांट दैट ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन हमें उन्हीं से मिलनी है, पेड़ों से। बंकरमैन टेक्नोलॉजी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगी, ऑक्सीजन नहीं देगी। ये ऑक्सीजन खाद बना के पेड़ पौधों को खाद दी जाएगी, तब मिलेगी। अल्टीमेटली ऑक्सीजन पौधों से ही आनी है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बट हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जी अभी हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा दी है, हमने कुछ पार्क बना दिए दिल्ली में और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी नहीं होगी इस तरह से सॉल्व। तो यू हैव टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी लाइक दिस। और ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है जेंटलमैन? इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा कहाँ हुआ है कि जितने भी एयर कंडीशनिंग प्लांट हैं, सेंट्रल एसी प्लांट, उन प्लांट में अगर इस टेक्नोलॉजी को लगा दें तो जो बिजली का कंजम्पशन है प्लांट में, वो 40 से 60% रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है? जैसे ये होल है, इसमें अगर सेंट्रल एसी लगा है, CO2 लेवल 1500-1600 हो रहा है ना आपके पास यहाँ, तो क्या करते हैं सेंट्रल एसी प्लांट में कि 1500-1600 ना हो, हम इसमें बाहर की हवा ऐड करते हैं। ये और सब एसी प्लांट में सिस्टम होता है, इसको कहते हैं ACH, एयर चेंज पर आवर। यानी कि 1 घंटे में 4 से 12 बार ये हवा चेंज होती है। यानी कि अंदर की हवा बाहर फेंको और बाहर की हवा को अंदर लाओ। क्यों लाते हैं? क्योंकि बाहर की हवा में अभी भी CO2 कंटेंट 500-600 ppm है दिल्ली के अंदर, NCR में बाहर। तो ये अगर 1600 हो गया है, इसमें 500 ppm की हवा मिलाओगे तो क्या होगा? ये एवरेज आउट हो जाएगा। इसको कोशिश की जाती है 1000 ppm से नीचे रहे, लेकिन बाहर टेम्परेचर होता है इंडिया में 40-45, अंदर चाहिए हमको 20-22, तो इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, बंकरमैन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम CO2 को अंदर ही एब्जॉर्ब करते हैं, हमें एयर चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम देखिए ये एयर चेंज बचाते हैं। ये जो ये एयर चेंज है, जनरली बिल्डिंग में 2 से 3 एयर चेंज पर आवर जरूरी होते हैं हर बिल्डिंग में, हम इसको भी बचा लेते हैं। हम कहते हैं एक एयर चेंज करो 24 घंटे में एक बार। सुबह जब आप आते हो फ्रेश हवा ले लो, 500 ppm बाहर है, 500 ppm अंदर कर दो। उसके बाद ये हमारा सिस्टम ऑन कर दो, रात तक रहो, 24 घंटे तक रहो, CO2 कंटेंट नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन कंटेंट भी कम नहीं होगा। ऑक्सीजन कंटेंट के लिए हम 24 घंटे में एक बार एक एयर चेंज ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होती है 21% हवा में, इसको नीचे आने में टाइम लगता है। 24 घंटे के बाद करीब ये 17% पे आती है, उसके बाद चेंज करने की जरूरत होती है हवा को, ताकि 17% से नीचे थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो ये सेविंग होती है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये अगर बाहर का एनवायरनमेंट में CO2 है तो इतने एयर चेंज की जरूरत पड़ रही है। पहले 300-400 ppm था CO2 हवा में, तो ऑल एसी हैव बीन डिजाइन बाय दिस टेक्निक, 2 to 3 एयर चेंज पर आवर पे डिजाइन किए जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिल्ली गुड़गांव में CO2 लेवल यहाँ पाया जा रहा है 600, 700, 800। सो दे नीड 8 एयर चेंजेज पर आवर, और ज्यादातर एसी प्लांट में ये हो रहा है। ये 8 एयर चेंज पर आवर करके ही उनको इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता।
तो क्या कर रहे हैं, सब अपनी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास पैसे की कमी नहीं है। उनके पास 200 टन का प्लांट लगा हुआ है, वो 300 टन का कर रहे हैं उसको, 400 टन का है उसको 600 टन कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। 2 साल बाद क्या होगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी ए विशियस साइकिल जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो बंकरमैन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, वो कहते हैं इनको एलिमिनेट करो सबको, एयर चेंज पर आवर को, एंड हैव दिस मच परसेंटेज सेविंग। 37 से 50% की सेविंग यहाँ हो रही है। जो मैंने क्लेम किया था कि 40 to 50% सेविंग जनरली सब प्लांट में होती है। और जैसे आने वाले टाइम में अगर बाहर का CO2 कंटेंट 900 और 1000 हो गया, तब तो 77% सेविंग होगी इस टेक्नोलॉजी से। और ये हो रहा है, मैंने आपको रीडिंग दिखाई है ना, 900 1000 की रीडिंग दिखाई है आपको एम्स के सामने दिल्ली के अंदर। वहाँ के AC प्लांट सब फेल हो रहे हैं, एयर चेंज पर आवर कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है इस कंडीशन से। तो ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आई एम 100% श्योर कि इस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करने के बजाय और कोई साधन नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट कार्बन कैप्चर, कि हवा से डायरेक्ट कार्बन को कैप्चर करो और उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में बदलो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन जेंटलमैन, दुनिया के साइंटिस्ट डायरेक्ट कार्बन कैप्चर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ रही है कि दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉस्टली। इस टेक्नोलॉजी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $300 से $600 पर मीट्रिक टन आ रही है, और ये कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे लाने की कॉस्ट को। इन इंडिया with this technology we are lucky, we have brought down this cost not only to 0, I have brought down this cost to -$160 per ton. That's why it is at a negative cost. I am giving a offer to the projects, जो नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं अंडमान में, ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है। वहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हरमुज स्टेट है उस जैसा ही बनाया जा रहा है उसको, क्योंकि चाइना का सारा माल वहाँ से जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कुछ अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का, वो कह रहे हैं जी वो तो 8 लाख पेड़ काट रहे हैं, 10 लाख पेड़ काट रहे हैं, वहाँ से बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। जेंटलमैन 8 लाख 10 लाख पेड़ जरूर कट रहे हैं उसमें, लेकिन बंकरमैन टेक्नोलॉजी अगर उसमें इस्तेमाल की जाए उस प्रोजेक्ट में, 2.5 करोड़ पेड़ों के बराबर हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से। बताइए कहाँ 8 लाख और कहाँ 2.5 करोड़ पेड़ों का कंपनसेशन इससे मिल रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट में हम 10 से 20% की सेविंग करके दे रहे हैं उनको इनिशियल कॉस्ट में। ये प्रपोजल गया है, एग्जामिन कर रहे हैं अभी एनर्गो और अदानी, वो भी डिफेंस इसको एग्जामिन कर रहे हैं अभी हमारे प्रपोजल को। तो कितनी अच्छी प्रोजेक्ट है कि मेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे उनसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। आपका जो है उसको रीडिजाइन करो, 5 से 10% 20% की सेविंग करो प्रोजेक्ट में, और उसके बाद हर साल करीब इस प्रोजेक्ट में 700 करोड़ पर ईयर की सेविंग करके दे रहे हैं, पावर सेविंग। ये हो रहा है देखिए दूसरा दिल्ली में, जितने भी हॉस्पिटल हैं सबके सब दे आर पंपिंग आउट पोल्यूशन, दे आर पंपिंग आउट सो मैनी फाउल गैसेस। इवन जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है इनका रेडिएशन भी हवा में छोड़ रहे हैं। मैंने इनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहता हम तो अपनी जो छत है उसके ऊपर छोड़ते हैं। दे आर सेफ, जो भी पोल्यूशन है इनका, इवन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से जो भी इनके बीमारियों वाले वायरस सब आते हैं, कहते हैं हम डायरेक्ट हवा में नहीं छोड़ रहे, हम तो अपनी छत के ऊपर छोड़ते हैं। भाई आपने अपनी छत के ऊपर छोड़ दिया, ये 5 मंजिला हॉस्पिटल है, लेकिन इसके आसपास जो बिल्डिंग है देखिए, पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है हमको 20 स्टोरी बिल्डिंग, 30 स्टोरी बिल्डिंग, ये सारा पोल्यूशन वहाँ जा रहा है जनरल में। और यही हो रहा है एम्स में, सफदरजंग में, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा सस्टेनेबल मॉडल है हॉस्पिटल्स के लिए, 5 स्टार होटल के लिए, क्योंकि इनकी कमाई हो रही है। ये AC प्लांट का लोड बढ़ाते जा रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल है साकेत में, पहले 2 फ्लोर थे, अभी तीसरा बन गया है। AC प्लांट 1.5 गुना लग गया है, पेशेंट हो आने शुरू हो गए हैं उनके पास। तो उनके लिए तो सस्टेनेबल मॉडल है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए इट इज ए डाइंग मॉडल जेंटलमैन। बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहा है, और आप देख भी रहे होंगे पहले 1-2 हॉस्पिटल होता था गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में, अभी तो 20 हॉस्पिटल बन गए हैं, और सारे के सारे फुल हैं, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। तो कौन बढ़े, मरीज बढ़ गए हैं। तो ये बीमारियों का कारण है, एंड दिस इज द मेन रीजन। आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा। ये देखिए एम्स की बिल्डिंग तो 4-5 मंजिली है। एम्स के सामने क्या था पहले, किदवई नगर ईस्ट वेस्ट, डबल स्टोरी फ्लैट होते थे, सिर्फ डबल स्टोरी।
अब क्या बन रहा है उनके सामने? ये कॉन्क्रीट जंगल बन रहा है, मल्टी स्टोरी, 17 स्टोरी, 20 स्टोरी बिल्डिंग, इतनी पॉपुलेशन इकट्ठी हो रही है। और ये रीजन है वहां पर 1000 ppm पाया गया है, क्योंकि इतने लोग होंगे, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी छोड़ रहे हैं, उनकी किचन भी छोड़ रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज टेकिंग प्लेस। एंड जेंटलमैन, दिस आई हैव हाईलाइटेड टू द गवर्नमेंट कि ग्रेटर नोएडा बनाए गए थे किस लिए? कि दिल्ली में पॉपुलेशन का लोड कम हो, लेकिन अब वो सिचुएशन फिर से हो गई है। अब दोबारा से दिल्ली की पॉपुलेशन में लोड बढ़ने लगा है। लोग भूल गए उस चीज को कि हमने नोएडा और गुड़गांव बसाया था इसलिए कि दिल्ली की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग ना बनानी पड़े। लेकिन अभी तो देखिए यहाँ बन रही है हाई राइज बिल्डिंग, इससे आगे चले जाओ, इसी रोड पे टाइप 2 क्वार्टर हिंदवी नगर ये बन रहे हैं, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बनी है ना बिल्डिंग, सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग के आगे क्या होगा, कितना पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये देखिए सरोजनी नगर में जो छोटी बिल्डिंग होती थी, डबल स्टोरी फ्लैट होते थे, यहाँ भी ये भी सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ राइजिंग इन पोल्यूशन इन दिल्ली। इसको ध्यान जब तक नहीं जाएगा गवर्नमेंट का कि हम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कर रहे हैं एक जगह, पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन होगा, मोर CO2, मोर ग्लोबल वार्मिंग, मोर टेम्परेचर चेंज, दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली की ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से हो रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो इनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है कि जितनी ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी लगाओ, चाहे बिल्डिंग में लगाओ या इंडिविजुअल कमरे में लगाओ, टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने से सिस्टम भी लगेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होगी ये टेक्नोलॉजी। तो बंकरमैन टेक्नोलॉजी का मेन एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये टेक्नोलॉजी की इफेक्टिवनेस और बढ़ेगी। गाड़ियां बढ़ेंगी तो उतनी ज़्यादा गाड़ियों में सिस्टम लगेंगे, ये ट्रेन में भी लगेंगे सिस्टम, ये बसों में भी लगा रहे हैं हम लोग, गाड़ियों में लगा रहे हैं आपके इंडिविजुअल, आ रही है टेक्नोलॉजी, आने वाली है। तो यही एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से बचा सकती है। तो ये है बेसिकली कंक्लूजन है। ऑल 5 स्टार होटल्स एंड खासकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, दे आर ऑल पंपिंग आउट पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट, और इनको रोका जाए। मैंने गवर्नमेंट को ये बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि आप अंकुश कसो इन पे, सिर्फ 5 स्टार होटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बताओ कि भाई आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करो और सबसे पहले अपनी 40% एनर्जी बचाओ। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांग रहे उनके, 40% सेविंग करो, उस टेक्नोलॉजी को यूज करो, वातावरण शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी पहली बार जेंटलमैन हमने यहाँ लगाई है गुवाहाटी के एक डाटा सेंटर में, 2 साल से चल रही है और यहाँ पर ये निगेटिव कॉस्ट में काम कर रही है। ये और भी खतरनाक गैसें होती हैं रिफाइनरी में, तो जो दिल्ली में नहीं है, इन सब गैसेस को हमने एब्जॉर्ब किया है। विद रिजल्ट इनका ये सिस्टम लगा है 4 मीटर बाय 2 मीटर का हमारा वहाँ। ये फिल्टर लगते हैं, ये वाले फिल्टर हैं हमारे 1 फीट बाय 1 फीट के, यही मल्टीप्लाई होके लग जाते हैं। जब से हमने ये सिस्टम लगाया उनकी कोरोजन की प्रॉब्लम दूर हो गई। डाटा सेंटर में जो कंप्यूटर होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं, कॉपर का और सिल्वर का, वो करोड़ हो जाते हैं, डाटा करप्ट हो जाता है। आपके यहाँ भी होता होगा, अगर आपके डाटा सेंटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहाँ भी लगे हुए हैं, वो भी करोजन आता है उसमें। तो वहाँ के लिए बिल्कुल सटीक सोल्यूशन है, क्योंकि हम अंदर की हवा से सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं। तो जीवन कंडीशन मेंटेन हो रही है पिछले 2 साल से इसमें। और इनका लोड जो है, पहले इनके 2 चिलर चलते थे 160 टन के, एक स्टैंड बाय रहता था। जब से हमने सिस्टम लगाया सिर्फ 1 चिलर चल रहा है, यानी कि 50% इनकी पावर की सेविंग हो रही है। ऑफिशियली दे हैव एक्सेप्टेड 40% सेविंग। जो इनका बिजली का बिल 5 लाख रुपए का आता था, वो अभी सिर्फ 3 लाख का आ रहा है, तो 2 लाख की सेविंग इसमें हुई है। एक और प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट की सफलता के बाद दूसरी प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लगाई, ये भी 2 साल हो गए चलते चलते, ये भी बिल्कुल सफल हो रही है। गुड़गांव की बिल्डिंग है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे थे, देखिए इनके पास लोड था 185 टन का, और CO2 कंटेंट वही हो रहा था, 2000 से ज़्यादा जा रहा था, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था इनके पास। तो दे वर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्लांट टू 255 टन, और 3 करोड़ खर्च कर रहे थे इसके ऊपर। हमने अपनी टेक्नोलॉजी सजेस्ट की, इनका लोड आया 165 टन, जितना है उससे भी कम, और जो 2-3 करोड़ खर्च कर रहे थे, हम 2 करोड़ में सिस्टम लगा के दे रहे हैं इनको। जैसे छोटा प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद एनुअल सेविंग हो रही है, कार्बन क्रेडिट मिल रहे हैं, अच्छी हवा मिल रही है, बाहर का एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करने जा रही थी 17,000 करोड़ अगले 3 साल में। वो कहते हैं दिल्ली में बिजली कम पड़ेगी,
मैं कह रहा हूँ दिल्ली में बिजली कम नहीं पड़ेगी। ये 17,000 करोड़ बचाए जा सकते हैं इनके, अगर इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एयर कंडीशन बिल्डिंग में यूज करना है। दिल्ली के अंदर सिर्फ एयर कंडीशन बिल्डिंग में, जो हॉस्पिटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कैन सेव 6,000 करोड़ 800 करोड़, यानी कि 7,000 करोड़ पर ईयर की सेविंग बिजली की हो सकती है दिल्ली में। यानी कि अगले 3 साल में 21,000 करोड़ की बिजली बचा सकते हैं दिल्ली में, जस्ट बाय यूज ऑफ दिस बंकरमैन टेक्नोलॉजी इन एसी बिल्डिंग्स इन दिल्ली। तो 21,000 करोड़ ये, और जो 17,000 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं वो भी सेविंग है। तो टोटल सेविंग कितनी होगी? 38,000 करोड़ अगले 3 साल में। ये प्रपोजल अभी अंडर एग्जामिनेशन है, सोच रही है दिल्ली गवर्नमेंट। होपफुली अगर समझ आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये जान बच जाएगी दिल्ली की, नहीं तो दिल्ली ऐसे ही तड़पती रहेगी जैसे अभी हर साल तड़प रही है। और देखिए इतने 1000 पेड़ों के बराबर ये वातावरण को क्लीन करेंगे। 83 करोड़ पर मंथ की तो इनकी इनकम होगी कार्बन क्रेडिट से, ये एक्स्ट्रा है इनकम। तो इस टेक्नोलॉजी के सारे फायदे ही फायदे हैं। इनिशियल कॉस्ट में सेविंग, मेंटेनेंस में सेविंग, कार्बन क्रेडिट से सेविंग, एक अच्छी हेल्थी एयर और बाहर का एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये है ग्रेट निकोबार की प्रोजेक्ट का, जो मैंने आपको बताया। ग्रेट निकोबार की प्रोजेक्ट में अगर इसको लगाया जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ों के बराबर, ये 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ों के बराबर वातावरण को क्लीन करेगी। 10 लाख 20 लाख पेड़ भी कटते हैं, डोंट वरी, जहाँ आपको 2.5 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है। और ये इनकी होगी पर मंथ की सेविंग 53 करोड़ पर मंथ की सेविंग है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 53 करोड़ पर मंथ की सेविंग आप साल में लगा लिए, 12 पंजे 60, करीब 600-700 करोड़ पर ईयर की सेविंग बिजली की होगी देयर आफ्टर, और कार्बन क्रेडिट भी मिलेंगे इसमें। सो दिस इज ए टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू बी ऑफ रिवोल्यूशनरी नेचर। ये तो हो गए वैसे बड़ी प्रोजेक्ट में। छोटे प्रोजेक्ट में हमने कुछ ये मॉडल बनाए हैं, जैसे एक कमरे के अंदर ये छोटी सी मशीन लग जाती है, 3 आदमियों के लिए काम करती है, 3 से 5 आदमियों के लिए, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस में ये बड़ी कारगर है। 51 पेड़ों के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। इससे अगला एक और बड़ा सिस्टम है ये वो फैसिलिटी है, इसमें 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। ये ऐसा सिस्टम है कि बाहर अगर कोरोना हवा में भी आ गया, न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, आप अपनी बिल्डिंग के अंदर सेफ रहेंगे इस टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम 2 सिलेंडर देते हैं और यहाँ से कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो सबसे पहले तो हम सजेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर इस कमरे को लेटर से हमें डिजास्टर के लिए तैयार रहना है, कि बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं यहाँ पर, ये इनकी जान नहीं जानी चाहिए अगर बाहर कुछ भी हो गया तो। लेटर से बाहर न्यूक्लियर ब्लास्ट ही हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया, पार्लियामेंट में बम गिर गया, लेटर से एज्यूम ये पार्लियामेंट से थोड़ा दूर है, बम का इफेक्ट यहाँ तक नहीं आएगा, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी ये वाली, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होगा। तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं आप 10 दिन का राशन, इमरजेंसी राशन रखिए, 10 दिन का पानी रखिए हमेशा। अपने पूरे कॉम्प्लेक्स को भी कर सकते हैं इसके लिए दिया, बट लेटर से एक कमरे की बात करते हैं। तो इस कमरे में ये सिस्टम लगाइए, और ये सिस्टम 2 मोड में काम करता है, एक नॉर्मल मोड, एक बटन अप मोड बोलते हैं इसको। नॉर्मल मोड में मतलब नॉर्मल एयर कंडीशन बिल्डिंग रहेगी, आपको CO2 एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ऐसा इवेंचुअलिटी होती है, अनाउंसमेंट होता है कि भाई बाहर खतरा है या बाहर की हवा में वायरस आ गया है, तो तब क्या करते हैं, गो इनटू बटन अप मोड। तो बटन अप मोड में आपको और कुछ नहीं करना, ये 2 दरवाजे हैं सील कर देना है टोटली, जो खिड़कियां हैं उसको सील कर दीजिए 100%, ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक स्विच देते हैं हम यहाँ पर, उसको बटन अप मोड में कर दो। बटन अप मोड में करते ही ये क्या करता है, सबसे पहले फ्रेश एयर ऐड करता है ये सिस्टम। कंप्रेस एयर ऐड करके आपका ये 2 सिलेंडर हैं इसमें ऑक्सीजन के, एक ये। इस सिलेंडर से ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड एयर ऐड हो जाती है, आपका कमरा पॉजिटिव प्रेशर पे आ जाता है। पॉजिटिव प्रेशर पे आने का मतलब ये कि बाहर की हवा अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाहर की हवा टॉक्सिक है। बाकी सिस्टम है फिल्ट्रेशन सिस्टम, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो 24 घंटे तक तो आप इस तरह रह सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन 24 घंटे बाद आपकी ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन कमरे में होती है 21% नेचुरल हवा में, धीरे धीरे 19% होगी, 18 होगी, 17 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो जैसे ही ये 17 को टच करेगी, या जहाँ आपने सेटिंग की है 19 से टच करेगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरे सिलेंडर से इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी। तो एक ये फैसिलिटी है जो न्यूक्लियर बंकर में इस्तेमाल होती है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। एक और फैसिलिटी, कोरोना में इमरजेंसी के दौरान आपको सिलेंडर नहीं मिले थे, तो इसमें 2 सिलेंडर हर कमरे में, हर घर में दिए जा रहे हैं, और इन 2 सिलेंडर से आप ये मेडिकल ऑक्सीजन भी 2 पेशेंट्स को दे सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये जो फैसिलिटी है
जो कि हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर्स में होती है या स्पेस मिशंस में होती है, जहाँ सुनीता विलियम 9 महीने जिंदा रही है बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का खेल है और कुछ नहीं है। CO2 जनरेट होती है, उसको एब्जॉर्ब करो, ऑक्सीजन जितनी जरूरत है उतनी दे दो, तो इस सिस्टम से आपको ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद कुछ और मॉडल हमारे हॉस्पिटल्स के लिए बनाए हैं। ये बड़े मॉडल हैं, 136 पेड़ों के बराबर काम करता है, 8 से 10। ये कॉन्फ्रेंस रूम के लिए है, जैसे आपका कॉन्फ्रेंस रूम 20 का है तो 20 आदमियों के लिए ये सिस्टम है आपका, जो ब्लू में दिखाया गया ये 25 आदमियों के लिए। तो ये एक सिस्टम देखिए, छोटा सा सिस्टम है, ये अगर इस कमरे में लगा रहेगा तो आपके CO2 1000 ppm से ऊपर नहीं जाने देगा, 800 और 600 के बीच में मेंटेन करके रखेगा ये। तो इस टाइप के इससे बड़े सिस्टम भी हैं। ये 50 आदमियों के लिए है, जो जवानों की बैरक में लगता है, हॉस्पिटल्स में लगता है। ये 75 आदमियों के लिए है। एक ये मॉडल फार्मर्स के लिए हमने प्रपोज किया है। गवर्नमेंट की स्कीम है किसानों की इनकम डबल की जाए। कैसे डबल होगी? एक ये प्रपोजल हमने भेजा है कि सोलर पैनल पे गवर्नमेंट 90% सब्सिडी दे रही है। आपको पता है एक प्राइम मिनिस्टर की कुसुम योजना है, उसमें सोलर पैनल के साथ आप कोई भी इक्विपमेंट लगाओगे 90% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो हमने प्रपोज किया है कि एक ऐसा सिस्टम हम हर किसान को देना चाहते हैं गांव में, उसको 90% सब्सिडी दो, बाकी 10% सब्सिडी हम कंपनी की तरफ से देंगे, हमने ऑफर की है। तो किसानों को ये सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए एक तरह से। और किसानों की इनकम कहाँ से होगी? क्योंकि ये 2500 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, क्योंकि गांव में रात को सारी फसलें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, वो सब सोखेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट देने शुरू कर दिए हैं किसानों को कि आप कार्बन कैप्चर करो, कार्बन क्रेडिट लो। तो इसमें से कार्बन क्रेडिट से किसानों की इनकम 5000 से 50,000 पर मंथ की इनकम हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो ये प्रपोजल है, ये अंडर कंसिडरेशन है। लेट अस सी कितना कामयाब होता है। किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को, रूल है एग्जिस्टिंग। सोलर पैनल के साथ ही चलेगा ये सिस्टम, बिजली की जरूरत नहीं है, और कार्बन को कैप्चर करेगा। और इस तरह से पूरा एनवायरनमेंट सबका कॉमन है, इस तरह से वातावरण शुद्ध होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी इन सब स्कीम्स की वजह से। ये कैलकुलेशन है इसकी सीधे। एक फार्मर जो है 5 से 50,000। उसके बाद कुछ ये आउटडोर मॉडल है जेंटलमैन। ये पेड़ आर्टिफिशियल पेड़ की तरह काम करते हैं। ये छोटा सा जो सिस्टम आपके सामने लगा हुआ है, 816 पेड़ों के बराबर CO2 सोखेगा। एक पेड़ 2 पेड़ के बराबर नहीं, 816 पेड़ों के बराबर। ये लगाइए गार्डन में, दिल्ली गवर्नमेंट को सजेस्ट किया हमने, रोड के साइड में लगाइए इसको। देखिए ये आर्टिफिशियल पेड़ होंगे, आगे आने वाला टाइम ये होगा, हजारों पेड़ों के बराबर वातावरण को शुद्ध करेंगे। पार्क में लगाइए 1000 पेड़ों का, फ्लाईओवर के नीचे लगाइए ये सिस्टम, बहुत जगह है अवेलेबल। अब देखिए 10 सिस्टम लगा दिए, 10,000 पेड़ों के बराबर काम करेंगे। 10,000 पेड़ लगाने के लिए दिल्ली में कितनी जगह चाहिए? जगह है ही नहीं। तो ये इफेक्ट होगा इसका, रिवोल्यूशनरी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ गवर्नमेंट को हमने रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि इस बंकरमैन टेक्नोलॉजी को यूज करो। 5 स्टार होटल में, जितने भी एयर कंडीशन बिल्डिंग में, सबसे पहले वहाँ लगाओ, पैसा बचाओ अपना, नो एडिशनल कॉस्ट। बेसिक प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बचाओ, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचाओ। और उसके बाद बाकी सब ये सजेशन है, लॉन्ग टर्म प्लान लगाइए, करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है लास्ट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। जेंटलमैन, वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट अवेयर। आप मुझे ईमानदारी से बता दो, ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद पहले आपको पता था कि इतना सब वंडरफुल सिस्टम अवेलेबल है इंडिया में? एंड दिस इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया। आई हैव मेड दिस टेक्नोलॉजी इन सच ए वे दैट ओनली इंडिया कैन प्रोड्यूस इट। हमारे पास, मैंने इसमें वो रॉ मटेरियल यूज किए हैं जो हमारे पास सरप्लस में है, जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज है, जो हमारी इंडस्ट्री की वेस्टेज है। कोई भी इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको इंडिया में। और इंडिया और फार्मर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स इसको यूज करेंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, इंजीनियर हूँ, भाई किसान वो हो गया, लेकिन मैं जो भी मेरी रिसर्च हुई है हमेशा किसान ओरिएंटेड रही है। मेरे दिमाग में था ये कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, किसान का फायदा कहाँ होगा। तो ये टेक्नोलॉजी किसान यूज करेंगे। कृषि प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान, और हम पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, पॉपुलेशन का फायदा उठाइए। पॉपुलेशन लाइबिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन इज एसेट इन दिस केस। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज होंगे, जितनी कारें बढ़ेंगी उतनी कारों में ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आप इसको ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ रोक नहीं सकते, इससे वापस ला सकते हैं आप इसको। आई हैव गिवन इट अ चैलेंज that if this technology is adopted by everybody in India and in other countries, we can reverse this climate change
वी कैन रिवर्स दिस ग्लोबल वार्मिंग। जो 1000 ppm हो रहा है बाहर, इसको हम वापस 300 पे 400 पे ला सकते हैं एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, बशर्ते कि ये इस मास स्केल पे यूज हो। ओके, नाउ यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, आई विल क्लैरिफाई टू यू, अगर पॉसिबल है।